Assalamu alaikum my dear students, my name is Mr. Syed Zafar Abbas and I am here on the behalf of Unique Academy, Bahawalpur. The topic that I am going to discuss with you is parts of speech. Parts of speech को उर्दू में कहते हैं अज्जाए कलाम, यानी कि वो पार्ट्स, वो हिस्से जो हमें बातचीत करने में, जो हमें कन्वर्सेशन करने में हेल्प आउट करते हैं, उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो अज्जाए कलाम हैं, जो अज्जाए गुफ्तगू हैं, पार्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो इंग्लिश में 8 हैं, नंबर्स में 8 हैं. वो The names are, first one is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunctions and interjections. So there are 8 main parts of speech in English language which help out, which assist us, जो हमारी मदद करते हैं in making conversation in English. But the topic that I want to discuss with you is regarding MCQs type question in matriculation level. This is according to the MCQs type question. So this is very short idea, you can say. It will help you in solving the MCQs type questions in English in matriculation level. So starting with the first part of speech, that is noun. The name of a person, place or a thing is called noun. The short definition is a naming word is called noun. Examples are city, this is the place name. Asma, the name of a person. Gold, the name of object. Valor, it is also a noun, that is abstract noun, because it consists of our abilities. The abstract noun consists of our abilities, they consist of our emotions, etc. So the noun is a naming word. Now, how many types of noun are there? The first type is common noun, जिसको उर्दू में कहते हैं आम नाम. The ordinary name of a person, place, thing, object or animal or any idea is called a common noun. Ordinary name यानी कि कोई जो आम नाम होता है, जो कॉमन हो, ऑर्डिनरी हो. फॉर एग्जाम्पल बॉय कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल कोई भी हो सकता है, प्लेस है. फॉर एग्जाम्पल बुक कोई भी हो सकती है, कॉमन है. सो कॉमन नाउन जो होता है बेटा, वो एक आम नाम होता है. इट इज़ अ कॉमन नेम, इट इज़ एन ऑर्डिनरी नेम of a person, place, thing, object or idea. Second type is proper noun, जिसको उर्दू में कहते हैं खास नाम. The particular name, कोई खास नाम. The particular, the proper name of a person, place, thing, idea is called proper noun. Examples include Makkah. This is the name of a place and it is a particular place. It is a proper place, the name of a proper place. Next one is Holy Quran, the name of object. Particular object, there are many books, but Holy Quran is one of the proper or particular object or book. Next one is Qaid-e-Azam. So this is also a proper noun. It is a name of a particular person.
तीसरी जो टाइप है नाउन की वो है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन इट इज़ अ टचेबल नाउन। ये एक ऐसा नाउन होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ बोर्ड मार्कर, दिस इज़ अ कंक्रीट नाउन बिकॉज आई कैन टच इट। दिस इज़ अ वाइट बोर्ड, it is also a concrete noun because I can touch it. One thing to remember that a concrete noun has some physical existence. इसका कोई तिबई वजूद होता है। It can be touched. इसको टच किया जा सकता है, इसको छुआ जा सकता है। For example, father, it can be touched. For example, whiteboard, for example, gold, paper. अब इसके बाद लिखा हुआ है कंक्रीट नाउन के बाद स्लैश लगा के लिखा हुआ है मटेरियल नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन इज आल्सो अ कंक्रीट नाउन, इट इज आल्सो अ टचेबल नाउन, बट सम कंक्रीट नाउन आर दोज फ्रॉम विच सम थिंग्स, सम मटेरियल्स कैन बी मेड, सो दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। कंक्रीट नाउन टचेबल नाउन होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनका कोई तिबई वजूद होता है, उनको हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। लेकिन उन कंक्रीट नाउन में से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें से कोई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जिनसे कोई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड है, गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर है, पेपर से हम डिफरेंट टाइप की स्टेशनरी बनाते हैं। सो दीज आर मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वुड है, वुड इज़ आल्सो अ मटेरियल नाउन, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंक्रीट नाउन बिकॉज इट इज़ टचेबल नाउन, एंड फ्रॉम वुड वी कैन मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर एज वेल। नाउ कम टूवर्ड्स द फोर्थ टाइप ऑफ नाउन, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। It consists of our emotions, feelings, state, abilities, etc., etc. One thing to remember, abstract noun is the type of noun which cannot be touched, जिसको छुआ नहीं जा सकता, but it can only be felt, लेकिन इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। It means it has no physical existence. इसका कोई तिबई वजूद नहीं होता। इट कंसिस्ट ऑफ आवर इमोशंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे जज्बात आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमोशंस ऑफ लव, मोहब्बत के जज्बात, इमोशंस ऑफ हेटर्ड, नफरत के जज्बात। इट कंसिस्ट ऑफ आवर फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ लव, फीलिंग्स ऑफ हेटर्ड, feelings of happiness, feelings of sadness. These are all the part of abstract noun. Similarly, state mean halat. For example, some person are in the state of joy, some person are in the state of gloom. So gloom means sadness and joy mean happiness. Similarly, it also consists of our abilities, our capacities. For example, he is brave. Bravery is an abstract noun. Courage, valor, it is an abstract noun because it is the ability. So abstract noun में बेटा हमारी abilities आ जाती हैं। For example, wisdom, for example, courage, for example, valor, abilities आ जाती हैं। इसमें हमारी emotions आ जाती हैं, जज्बात, लव, हेटर्ड। इसमें स्टेट्स आ जाती हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। और दूसरी चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर अनटचेबल नाउन, दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। हियर आर सम एग्जांपल्स, वलर बहादुरी, जॉय खुशी स्टेट है, विजडम एबिलिटी है जहानत, पेशेंस सबर ये भी स्टेट है। तो दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट वन इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। एज द नेम इंडिकेट्स, जैसा कि नाम जाहिर करता है,
Countable noun can be estimated. The type of noun which can be estimated, which can be counted. काउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, which can be measured, whose measurement is possible, is countable noun. Next one is uncountable noun. It is non-estimated noun. It can't be estimated, it can't be counted. That is why it is called an uncountable noun. For example, number of chairs in a room. These can be counted. This is a countable noun. Number of pencils, number of books, number of boys in a class. These are all countable nouns. So countable nouns can be easily measured. These can be easily counted, are called countable noun. And next one is uncountable noun. Uncountable nouns are those nouns which can't be estimated, which can't be counted, which can't be measured, जिनकी हम पैमाइश नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते. These are called uncountable nouns. For example, milk, oil, water, petrol. These are all uncountable nouns. Number of particles of sand. These are not easily measurable. These are not measurable. These are not able to be counted. These are called uncountable noun. Okay. Next thing is collective noun. It shows some collection. ये मजमूए को ज़ाहिर करता है. For example, army. It consists of number of officers and soldiers. Police. Family consists of large number of people, large number of persons. Family. Class, it consists of number of students. Herd, fleet, band, number of singers. Fleet, number of ships. Herd, number of animals. Cattle, number of animals. These are called collective noun. Media, group. Media is also a collective noun because it consists of number of different you can say sources. For example, newspaper, for example, electronic media, and newspaper, that is called print media. So media is a collective noun. And one thing to remember, collective noun is always taken as a single noun. For example, media plays a constructive role in a society. Media plays, media को मैंने सिंगल नाउन के तौर पर काउंट किया है, इसलिए उसके साथ मैंने प्ले के साथ एस लगाया. तो डू रिमेंबर, collective noun is always taken as a single noun, and it shows collection of some people, some objects, some persons, some animals, etc., etc. Now we are going to start the second parts of speech, that is pronoun. My dear students, as you know, a pronoun is a replacing word. It stops the repetition of a noun. The question arises, why do we use pronoun? We do use pronoun to stop the repetition of a noun. जब हम एक नाउन को बार बार ना लिखना चाहें, नाउन की रेपिटेशन हम जो उसका दोहराया जाना है उसको हम ख़त्म करें, उसको हम रिमूव करना चाहें, तो फिर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ रिप्लेसिंग वर्ड, कि ये एक रिप्लेसिंग वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह लेता है. एग्जाम्पल्स: ही, my, yourself, some, who, this, that, each other, one another. These are all the examples of pronoun. Now I will discuss with you the types of pronoun. The first type is personal pronoun. Takes the place of people or things. Personal pronoun पर्सन की या किसी चीज़ की जगह लेता है.
For example, he. For example, she. For example, I. For example, they. For example, we. These are all personal pronoun. For example, it. This is also a personal pronoun because it takes the place of some object, something. सो पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी शख्स की या किसी चीज़ की जगह लेता है, किसी ऑब्जेक्ट की जगह लेता है। आई, वी, मी, अस, इट। दूसरी चीज़ जो याद रखने की है वो ये है कि पर्सनल प्रोनाउन मे बी सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट मे बी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। If it is used in place of subject, it is called subjective pronoun, and if it is used in place of object, it is called objective pronoun. For example, I play cricket. I is a personal pronoun, it is a subjective pronoun क्योंकि ये subject की जगह ले रहा है। We watch movie. We जो है वो subject की जगह ले रहा है, लिहाजा ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही क्वारल्ड विद मी। मी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, तो मी जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे कम टू अस। दे जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले रहा है, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और जो अस है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले रहा है, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन विच टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन विच टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मफूल की जगह लेता है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो हमारी मलकियत को जाहिर करता है, जो हमारी पोजेशन को शो करता है। इट शोज सम पोजेशन, ये ओनरशिप को जाहिर करता है। इट शोज सम ओनरशिप, मलकियत को जाहिर करता है, हमारी पोजेशन को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी पोजेशन बताऊं तो मैं कहूँगा दिस इज़ माई हाउस। माई जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं किसी सामने वाले की पोजेशन बताना चाहूँ तो मैं कहूँगा दिस इज़ योर रूम। योर जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। इसी तरह अगर हम किसी ऐसे बंदे की पोजेशन बताना चाहें जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, हु इज़ नॉट प्रेजेंट हेयर, तो हम कहेंगे दिस इज़ हिज हाउस, या दिस इज़ हर रूम, हर, हिज, देयर, आवर, my, your. These are all possessive pronoun because they show some possession, क्योंकि ये मलकियत को जाहिर करते हैं। It shows some possession, for example, my, our, his, her, hers, mine. For example, this book belongs to him. Him हो गया, her हो गया, mine हो गया। दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, ये मैं अपनी पोजेशन बता रहा हूँ। इसके बाद थर्ड टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज़ अ सेल्फ और सेल्फ फॉर्म। इट शोज रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, माई से माई सेल्फ, खुद, मैं खुद। ही, वो, हिमसेल्फ, वो खुद। उर्दू में इसको कहते हैं खुद वाली फॉर्म, और इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ या सेल्व्स फॉर्म। सेल्फ इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड सेल्व्स इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल। सो इट इज़ अ सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म। इट शोज सम रिफ्लेक्शन ऑफ दैट पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अ सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Examples, he से himself, we से ourselves, they से themselves, you से अगर सामने वाला सिंगुलर है तो yourself, अगर प्लूरल है तो yourselves।
Now come towards the fourth type, that is an indefinite pronoun. It is a general word that is used for all at the same time. बेटा indefinite pronoun एक general word होता है जो at the same time सबके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास है, मैं आपको कहता हूँ कि नो वन शुड मेक अ नॉइस, नो वन शुड मेक अ नॉइस, मैं एट द सेम टाइम सबको कह रहा हूँ. तो नो वन एक जनरल वर्ड है और ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि समवन शुड स्टैंड अप फ्रॉम योर क्लास, समवन, मैं ओवरऑल एट द सेम टाइम आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, मैं एट द सेम टाइम सबको कह रहा हूँ. इसी तरह मैं कहता हूँ कि नोबडी लीव द क्लास, नोबडी कोई भी नहीं, तो ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन which is often asked in MCQ type questions. For example, some are born great, so some is an indefinite pronoun. और indefinite pronoun एक general word होते हैं जो at the same time, at the similar time सब के लिए यूज़ हो रहा होता है. For example, no one, someone, everyone, nobody, somebody. These are all indefinite pronoun. Here are some examples: nobody, some, everyone, everybody, someone, etc., etc. Now come towards the fifth type, that is demonstrative pronoun. It indicates or points out towards some person or some place, something, some object, etc. So जैसा कि नाम से जाहिर है, ये किसी चीज़ की तरफ, किसी शख्स की तरफ, किसी जगह की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है. इट सिग्नल्स, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स समथिंग, सम पर्सन और सम ऑब्जेक्ट. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारा करता है. फॉर एग्जांपल, अगर करीब की कोई सिंगल चीज़ है तो उसके लिए मैं दिस यूज़ करूँगा, दिस इज़ अ चेयर. अगर करीब की ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसके लिए मैं दीज का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, दीज आर चेयर्स. इसी तरह अगर दूर की, डिस्टेंट प्लेस की सिंगल ऑब्जेक्ट है, कि सिंगल चीज़ है, तो उसके लिए मैं दैट यूज़ करूँगा. अगर दूर की चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, तो उनके लिए मैं दोज यूज़ करूँगा. तो ये दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज आर ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्योंकि ये इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये इनको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इसलिए इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. नेक्स्ट टाइप इज रिलेटिव प्रोनाउन. इट इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज. ये किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, रिलेट करता है, एक क्लॉज को दूसरी क्लॉज के साथ लिंक करता है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है. इट एक्ट्स एज अ ब्रिज टू कंबाइन, to relate two clauses. That is why it is called a relative pronoun, and it usually starts with W family, and that is also included in relative pronoun. For example, who, that, whom, which, whose. Mostly ये W family से start होते हैं और ये relate करते हैं एक clause को दूसरी clause के साथ, इसीलिए इनको relative pronoun कहा जाता है. इसके बाद नंबर 7 जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चंस, और ये भी तकरीबन वही हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन में वर्ड्स यूज़ होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो स्टार्ट में लगाए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. फॉर एग्जांपल, हु आर यू, फॉर एग्जांपल, वेयर आर यू गोइंग, हुज बुक इज़ दिस. तो इनको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, यूज टू आस्क क्वेश्चंस. एग्जांपल्स, हु, व्हाट, व्हिच, होम, एटसेट्रा. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इट इन्वॉल्व ग्रुप्स दैट परफॉर्म सेम एक्शन. ये इसमें एक ग्रुप होता है या एक से ज़्यादा ग्रुप्स होते हैं जो एक ही काम कर रहे होते हैं.
इनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल द टू बॉक्सेस हिट ईच अदर। इसमें जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है इसमें दो वर्ड्स आते हैं, ईच अदर और वन एंड अदर। अगर दो चीज़ें होंगी, अगर मामला दो चीज़ों के दरमियान में होगा, दो लोगों के दरमियान में होगा, दो चीज़ों के दरमियान में होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होगा या टू पीपल के दरमियान में होगा, तो फिर तो हम लिखेंगे ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अली एंड अहमद क्वारल्ड विद ईच अदर, दो लोगों के दरमियान है। अगर मैटर दो लोगों के दरमियान में होगा तो उसमें हम यूज़ करेंगे ईच अदर। अगर बहुत सारे लोगों के दरमियान में होगा तो फिर वन एंड अदर। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन शेयर देयर लंच विद वन एंड अदर, बहुत सारे लोग हैं और एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वन एंड अदर का यूज़ किया। तो बेटा रेसिप्रोकल प्रोनाउन इन्वॉल्व वन ग्रुप ऑफ टू पीपल और मोर देन वन ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल हु परफॉर्म सेम एक्शन, जो एक ही काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सो दीज वर ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नाउ कम टूवर्ड्स वर्ब, that is third parts of speech. Verb, it is an action word, as you know very well. It is an action word. For example, write. For example, may, might, is, am, are, has, have, etc. These are all verbs. Now come towards the types of verbs. The first one is action verbs. It describes an action. For example, play, for example, write, for example, jump, for example, run. These are all action verbs because they show, they indicate some action. The next type, that is transitive and intransitive verb. It is the subdivision of action verbs. Now, what is a transitive verb? बेटा ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपना ऑब्जेक्ट रखता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स अ बुक। इसमें बेटा जो रीड्स है वो ट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि बुक इसका ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल ही राइट्स, इसमें जो राइट्स है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसका आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। और ये जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब हैं ये एक्शन वर्ब की सब डिवीजन है। वर्ब की जो सेकंड टाइप है वो है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड द सिचुएशनल वर्ब्स बिकॉज देयर मीनिंग्स आर चेंज्ड विद द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल मे, फॉर एग्जाम्पल कैन, फॉर एग्जाम्पल माइट। आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ कैन। कैन आई टेक योर बुक? यहाँ पर कैन जो है वो परमिशन के लिए यूज़ हो रहा है। आई कैन हिट अ सिक्स, यहाँ पर कैन जो है वो आपकी एबिलिटी बता रहा है। स्पेलिंग सेम है, सिमिलर मॉडल वर्ब है, बट मीनिंग चेंज हो रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द सिचुएशनल वर्ब्स। वन थिंग अनदर, डू रिमेंबर, modal verbs combine with other verbs to form compound verb. For example, I can play cricket. Can is a modal verb and play is a verb, or you can say action verb. Verb plus modal verb is equal to compound verb. Here are some examples. He may write a letter. May is a modal verb and write is a verb, or you can say it is an action verb. It is equal to compound verb. Now the third type is linking verb. Linking verb is also called a helping verb. It is also called an auxiliary verb. For example, is, for example, am, are, as, have, was, were, will, shall. These are called linking verbs. Why these are called linking verbs? Because they link, they connect the subjects of different sentences to other parts of the sentences.
इनको लिंकिंग वर्ब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को उस सेंटेंस के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करते हैं, मिलाते हैं। और इनको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हेल्प टू परफॉर्म एन एक्शन, क्योंकि वो एक्शन को परफॉर्म करने में, एक्शन को मुकम्मल करने में, एक्शन को कंप्लीट करने में मदद देते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ हियर आर अदर टाइप्स ऑफ वर्ब्स, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। माय डियर स्टूडेंट्स, regular verb is a type of verb whose second form of verb is equal to third form of verb। रेगुलर वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो बराबर होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले इज़ अ रेगुलर वर्ब, इट्स सेकेंड फॉर्म इज प्लेड, इट्स थर्ड फॉर्म इज आल्सो प्लेड। फॉर एग्जाम्पल कैच, कैच इज़ आल्सो अ रेगुलर वर्ब क्योंकि इसकी सेकेंड फॉर्म भी कॉट है और इसकी थर्ड फॉर्म भी कॉट है। फॉर एग्जाम्पल वॉश, इसकी भी सेकेंड फॉर्म वॉश्ड है और थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड है। फॉर एग्जाम्पल पुट, इसकी सेकेंड फॉर्म भी पुट है, थर्ड फॉर्म भी पुट है। तो एक ऐसा वर्ब जिसकी सेकेंड फॉर्म, जिसका पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल के बराबर हो, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट टेंस कहते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो जिसकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के बराबर हो, जिसका पास्ट टेंस पास्ट पार्टिसिपल के बराबर हो, वो तो होता है रेगुलर वर्ब। और अगर हम इरेगुलर वर्ब की बात करें तो ये उसका कन्वर्स है, उसका अपोजिट है। जिसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के इक्वल ना हो, वो होता है इरेगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल गो, गो, वेंट, गॉन। फॉर एग्जांपल ईट, एट, ईटन। जिसकी सेकेंड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म के इक्वल ना हो, वो होता है इरेगुलर वर्ब। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी हैव डिस्कस्ड 3 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच टुडे एंड today's lecture is closed now. We will continue it in our next lecture. I hope you will be understand it. Allah Hafiz.